مسیح خدا ان کے اعلیٰ اور افضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے شیطان نے یسوع کو کیوں آزمایا۔ ایک بار پھر کہوں گا کہ شیطان نے یسوع کو بیابان میں کیوں آزمایا۔ کیا شیطان جانتا تھا کہ یسوع مسیح کون ہے؟ بائبل مقدس کا جواب ہے ہاں، کیونکہ شیطان مسیح خداوند کو جانتا تھا۔ شیطان کو یہ علم یکدم نہیں ہوا، بلکہ شیطان صدیوں سے اس وعدہ شدہ نجات دہندہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے سانپ سے کہا، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت، اور میں تیری نسل اور عورت کی نسل میں کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ بائبل مقدس میں مسیح خداوند کے بارے میں پہلی پیشن گوئی ہوئی ہے۔ اسی لمحے شیطان جان گیا کہ ایک دن عورت کے نسل سے آنے والا میری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی لیے شیطان پوری تاریخ میں خدا کے منصوبے کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ کبھی اس نے قائن کے ذریعے، کبھی فرعون کے ذریعے اور بعد میں ہیرودیس بادشاہ کے ذریعے۔ شیطان کی جنگ صرف انسانوں سے نہیں تھی، بلکہ شیطان کا اصل نشانہ آنے والا مسیح خداوند تھا۔ شیطان کو پہلے ہی معلوم تھا مسیح خداوند کون ہے۔ شیطان کو پہلے ہی معلوم تھا کہ مسیح خداوند کون ہے۔ دیکھتے ہیں متی کے انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ جب مسیح خداوند نے بپتسمہ لیا تو آسمان کھل گیا اور خدا باپ کی آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ اعلان صرف وہاں موجود لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ روحانی دنیا کے لیے بھی تھا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جب وعدہ شدہ مسیح اپنی عوامی خدمت کے لیے شروع کرنے والا تھا۔ اسی لیے روح نے یسوع کو بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ متی کے انجیل اس کا 4 باب اس کی 1 آیت۔ یہاں ایک اہم بات پر غور کریں۔ شیطان نے یسوع پر حملہ اس وقت کیا جب خدا باپ نے یسوع کی شناخت کا اعلان کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ کوئی عام نبی نہیں، یہ کوئی عام استاد نہیں ہے، بلکہ وہی وعدہ شدہ مسیح ہے۔ شیطان کی کوشش یہ تھی کہ خدمت کے آغاز ہی میں مسیح خداوند کو ناکام بنا دے، تاکہ خدا کا نجات کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکے۔ شیطان کی نظر ہمیشہ خدا کے منصوبے پر ہوتی ہے، جہاں خدا اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے، وہی شیطان اس کے خلاف اپنی پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے۔ شیطان یہ جانتا تھا کہ یسوع واقعی دوسرا آدم ہے یا نہیں۔ شیطان یہ
शैतान ये जानना चाहता था कि यसू वाकई दूसरा आदम है या नहीं। शैतान की पहली कामयाबी बागे अदन में आदम के साथ हुई। बागे अदन में शैतान ने पहले आदम को खुदा के हुक्म से हटा दिया और गुनाह, मौत और लानत दुनिया में दाखिल हो गई। रोमियो का खत उसका 5वां बाब उसकी 12वीं आयत। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। लेकिन खुदा ने एक आखिरी आदम भेजा, यानी मसीह खुदावन। पहला आदम जीती जान बना, आखिरी आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 45वीं आयत। यहाँ एक गहरी हकीकत है। शैतान समझता था कि अगर पहला आदम इसकी बात मानकर पूरी इंसानियत को गुनाह में ले आया है, तो आखिरी आदम भी इसकी बात मान लेगा, तो निजात का मंसूबा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बियाबान की आजमाइश फैसला कुन मुकाबला था। एक शख्सियत जिसने इंसान को गिराया और दूसरा जो इंसान था वो दूसरे को उठाने वाला आया, यानी कि मसीह खुदावंद। जो पहला आदम जो था उसने शख्सियत को, इंसान की शख्सियत को गिरा दिया, मगर दूसरा जो था मसीह खुदावंद, उसने इंसान को दोबारा से खड़ा कर दिया। बागे अदन में पहला आदम शैतान के सामने हार गया, लेकिन बियाबान में आखिरी आदम इसी दुश्मन यानी शैतान के सामने साबित कदम रहा। यही वजह है कि शैतान ने पूरी ताकत के साथ मसीह खुदावंद को आजमाया। पहले आदम और आखिरी आदम के दरमियान फर्क पर गौर करें। पहले आदम और आखिरी आदम के दरमियान फर्क पर गौर करें। पहला आदम एक खूबसूरत बाग में रहता था, जहां जिंदगी कसरत से थी, पानी था, फरूट था, खाने पीने का सब कुछ, उसकी जो जरूरत की चीजें थी सब कुछ थे। लेकिन मसीह खुदावंद एक बियाबान में आजमाए जाते हैं। 40 दिन और 40 रात वहां खाने पीने की कोई चीज नहीं थी, पीने की भी कोई चीज नहीं थी, वहां जिंदगी की कोई भी आसाइश मौजूद नहीं थी। 40 दिन और 40 रात के फाकों के बाद आखिर उसे भूख लगी, तो फिर शैतान ने जो उसे आजमा रहा था उसे कहने लगा कि अगर तू चाहे तो ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये इत्तेफाक नहीं था। जहां पहला आदम पूरी जरूरियात के बावजूद नाकाम हुआ, वहां मसीह खुदावंद शदीद जिस्मानी कमजोरी की ताकत में भी खुदा बाप का वफादार रहा। इससे साबित होता है कि मसीह खुदावंद सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि वो कामिल और बेगुनाह निजात दहिंदा थे। बियाबान में मसीह खुदावंद की फतह सिर्फ मसीह की जाती फतह ना थी, बल्कि वो हमारी निजात की बुनियाद थी। अगर मसीह यहाँ नाकाम हो जाते तो सलीब तक पहुंचने वाला बेऐब बर्रा मौजूद ना होता और निजात का मंसूबा मुकम्मल ना हो सकता। शैतान
सलीब से पहले मसीह खुदावंद को रास्ते से हटाना चाहता था। बियाबान की आजमाइश का असल मकसद ये नहीं था कि यीशु से कोई एक गुनाह करवा लिया जाए, बल्कि शैतान की कोशिश थी कि मसीह खुदावंद को बाप की मर्जी से हटा दिया जाए। अगर यीशु एक बार भी शैतान की बात मान लेते तो कामल फरमाबरदारी का वो रास्ता छोड़ देते जो सलीब तक जाता था। अब्रानियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 15वीं आयत, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। इसलिए पहली आजमाइश भी सिर्फ रोटी के बारे में नहीं थी। शैतान दरअसल यीशु से ये कह रहा था कि अपनी भूख मिटाने के लिए खुदा बाप की मर्जी का इंतजार ना करो, बल्कि अपनी कुदरत, अपनी ताकत और अपने इख्तियार का इस्तेमाल करो। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 3री आयत, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। शैतान हमेशा इंसान को खुदा की मर्जी के खिलाफ चलाना चाहता है। बियाबान में भी शैतान का असल हमला रोटी पर नहीं था, बल्कि मसीह खुदावंद की कामल फरमाबरदारी पर था, और यीशु की यही फरमाबरदारी हमारी निजात का सबब बने। तीसरी आजमाइश मत्ती 4 की 8 और 9, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा। शैतान की ये पेशकश सिर्फ दुनिया की हुकूमत हासिल करने की नहीं थी, बल्कि सलीब से बचने की पेशकश थी। फिर दोहराऊंगा, शैतान की ये पेशकश सिर्फ दुनिया की हुकूमत हासिल करने की नहीं थी, बल्कि सलीब से बचने की पेशकश थी। खुदा बाप की मर्जी ये थी कि मसीह पहले दुख उठाए, सलीब पर जान दे, फिर जलाल पाए, लेकिन शैतान एक आसान रास्ता पेश कर रहा था, सलीब के बगैर ताज हासिल करो। मगर बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु ने सिर्फ बाप की मर्जी को कबूल किया। दूर हो ऐ शैतान, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 10वीं आयत। बाद में यीशु ने अपने शागिर्दों से भी कहा, लूका की इंजील 24 बाब और उसकी 26वीं आयत, क्या मसीह को ये दुख उठाना और अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? शैतान हमेशा खुदा की बरकत का ऐसा रास्ता बताता है जिसमें फरमाबरदारी, कुर्बानी और सलीब ना हो, लेकिन मसीह खुदावंद ने साबित कर दिया कि खुदा के जलाल तक पहुंचने का रास्ता हमेशा बाप की मर्जी को पूरा करना है। यही मसीह खुदावंद की फतह थी और यही ईमानदार की भी फतह का रास्ता है। मसीह की फतह हमारी फतह बन गई, मसीह की फतह हमारी फतह बन गई। बियाबान में यीशु की फतह सिर्फ यीशु की जाती कामयाबी नहीं थी, बल्कि यीशु उन सब की नुमाइंदगी कर रहे थे जो एक दिन यीशु पर ईमान लाएंगे।
जहाँ आदम हारा वहाँ मसीह जीते, जहाँ इसराइल नाकाम हुआ वहाँ मसीह वफादार रहे। इसीलिए यीशु की फतह का फ़ायदा सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि पूरी कायनात को पहुंचा। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 57 आयत में लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। ये फतह बियाबान में शुरू हुई और सलीब पर मुकम्मल हो गई और यीशु के जिंदा होने पर जाहिर हुई। इब्रानियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। मसीह खुदावंद के बियाबान वाली फतह, सलीब वाली फतह का आगाज से यीशु की कामल फरमाबरदारी ने वो रास्ता खोल दिया जिसके जरिए हम गुनाह, शैतान और मौत पर फतह हासिल कर सकते हैं। बियाबान की आजमाइश एक सच्चाई पर ख़त्म होती है। जब यीशु ने तीनों आजमाइशों में बाप की मर्जी को चुना तो शैतान हार मान कर वहाँ से चला गया। मत्ती की इंजील उसका 4वां बाब और उसकी 11वीं आयत, तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। यह सिर्फ एक वाकया का इख्तिताम नहीं था बल्कि एक ऐलान था कि शैतान मसीह को उनके मिशन से हटा नहीं सका। वही यीशु बाद में सलीब पर गए, अपने खून से गुनाह की कीमत अदा की, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आखिरकार शैतान को शिकस्त दे। आज सवाल ये नहीं कि क्या शैतान हमें आजमाएगा, बल्कि सवाल ये है कि जब आजमाइश आएगी तो क्या हम पहले आदम की तरह गिर जाएंगे या हार जाएंगे, या आखिरी आदम यानी कि मसीह खुदावंद की तरह खुदा के कलाम और फरमाबरदारी में साबित कदम रहेंगे। दुआ करते हैं। जिंदा और मेहरबान खुदावंद, मैं तहे दिल से आपका शुक्र बजा लाता हूँ इस अजीम कुर्बानी के लिए जो मेहरबान बाप आपने मेरे लिए और नस्ल इंसानी के लिए अदा की, ताकि मेहरबान बाप आपका बेटा सलीब पर अपनी जान दे और नस्ल इंसानी ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। सो मेहरबान बाप हमें कुव्वत दीजिएगा, ताकत दीजिएगा और मेहरबान बाप हमें शैतान की हर आजमाइश से लड़ने की कुव्वत अता कीजिएगा, ताकि मेहरबान बाप जिस तरह से वो बियाबान में शैतान शर्मिंदा हो गया, इसी तरह मेहरबान बाप आज भी हम शैतान के हर आजमाइश में कामयाब हों और मेहरबान खुदावंद ये कामयाबी हमारी खुदावंद ज़िंदगी बने और हमेशा की ज़िंदगी बने। सो मेहरबान बाप मैं सब देखने वाले और सुनने वालों के लिए भी दुआ करता हूँ कि खुदावंद हर एक जो भी जिस पर भी शैतान की तरफ से कोई भी आजमाइश आए वो साबित कदम रहे और यीशु जैसा साबित कदम रहे, ताकि मेहरबान खुदावंद शैतान को शिकस्त मिले। मांगता और चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।